write down mass energy equivalence. Mass energy equivalence. Mass energy equivalence. Mass energy equivalence. It is given by Einstein. Einstein, and according to this, energy can be converted into mass, and mass can be converted into energy, or E is equal to mc square, or E is equal to mc square, where E is the energy, okay, m is the mass of matter, and c is the velocity of light. C is the velocity of light. As we know, on the sun there is huge amount of hydrogen H2, and this hydrogen is converted by the method of atomic fusion or nuclear fusion, is converted into helium, and a lot of energy is producing, on the sun. Okay, similarly atomic bomb और other bombs, ठीक है, और कोई explosion होता है, ठीक है, आप क्रैकर्स करते हैं दिवाली के ऊपर, तो how the energy of that cracker is converted into, okay, mass of that cracker is converted into energy. So this is E is equal to mc square. Both energy and mass are interconvertible. Mass can be converted into energy, and energy can be converted into mass. Next is beta principle of conservation of energy. Principle of conservation of energy. It states that the energy can neither be created. Write down. The energy can neither be created. Sambit Dugal, write down beta. Energy can neither be created nor be destroyed. What can only be converted, but can only be converted from one form to another usable form. From one form to another usable form, or total energy of an isolated system, oblique universe always remains constant. Okay, right up. Next is very, very important topic, collision. 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 Very, very important topic, collision. Collision between two bodies is defined as the mutual interaction for a short interval of time. Mutual interaction for a short interval of time. As a result of which the kinetic energy and the momentum of the bodies, due to which the kinetic energy and the momentum of the bodies change. Momentum and kinetic energy of the bodies change. Yes. Now this collision is of three types. Number one, elastic collision. Elastic collision में, yes, what happens? Kinetic energy is conserved, momentum is conserved, P vector is conserved, total energy of the system is also conserved.
when two bodies collide elastically, then what happen? Kinetic energy of both the bodies is conserved, momentum of both the bodies is conserved, as well as total energy is conserved. Okay, write down elastic collision in which both momentum and kinetic energy of the system are conserved are called or is called elastic collision. Number 2, in elastic collision, number 2, in elastic collision, those collisions in which the momentum of the system momentum is conserved, kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved, but total energy is conserved. So what are inelastic collisions? All the collisions in which momentum of the bodies or system is conserved, total energy is conserved, but kinetic energy is not conserved. Write down today all the collisions in daily life. All the collisions in daily are elastic in nature. Are inelastic in nature. Last, number 3 type of collision, perfectly inelastic collision. It is the collision in which colliding bodies stick together after the collision and then move with a common velocity is called perfectly inelastic collision. यस बेटा जी, देखो इनइलास्टिक कोलिजन हो चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, इन दोनों में जो सेकंड एंड थर्ड है, इनमें मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दोनों में मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. एंड इन इलास्टिक जो नंबर 1 कोलिजन है, इसमें ऑल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एज वेल एज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. अब बेटे इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल देखो. इलास्टिक कोलिजन का होता है, बंटे देखे आपने, बंटे 2 पेबल्स, ग्लास पेबल्स, अगर 2 बंटे आपस में चले, ठीक है, और थोड़े से टाइम के लिए वो आपस में टकराएं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उन बंटों का क्या होगा बोलो, मोमेंटम भी कंजर्व होगी पूरे सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, एज वेल एज टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी. ओके, बिकॉज दैट ग्लास पेबल्स वी कंसीडर दैट इलास्टिक बॉडीज. ओके, बट इन इलास्टिक कोलिजन जो है नंबर 2 इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है,
इनइलास्टिक कोलिजन होता है, देखो आजकल कीचड़ बहुत है, ठीक है, अगर हम कीचड़ उठाएं और दीवार पे मारें तो क्या हो जाता है, बोलो साहस, वो दीवार पे चिपक जाता है। ओके, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो साहस, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, ओके। उसमें क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। एंड लास्ट वन जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। लिसन, देखो इधर, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आदित्य परमार, इधर देखो बे, आदित्य, हाँ देखो, ये मान लो कोई बॉडी है, ओके, ये बॉडी है, सस्पेंडेड है, ओके, लकड़ का एक बॉडी है, मान लो हैवी लॉब, ओके, और ये सस्पेंडेड है, और ये क्या है, बुलेट है। तो देखो ये जो लॉब है ये तो एक जगह खड़ा है, और बुलेट जो है आके लॉब के बीच में धंस जाती है, ओके, और इसके बीच में धंस जाती है, इसका मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है ना। और फिर क्या होगा, ये जो लॉब और जो बुलेट है वो दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलेंगी। सच कोलिजन इज कॉल्ड व्हाट, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इस कोलिजन में भी क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ध्यान रखना, ओके, एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। दोनों का आप प्रॉपर्टीज का क्लियर देखें, ओके, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। Yes, now it is very important article, very important article. Numerical point of view and your computation point of view and examination point of view, very important. Write down elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension. और इसी को बोल देते हैं बेटे और head on collision, HEAD, head on collision, head on collision. Write down, it is the collision in which, Jacob, write down beta, yes, it is the collision in which both momentum and kinetic energy are conserved, in which both momentum and kinetic energy are conserved, and the colliding bodies continue to move along the same straight line, after the collision is called elastic collision in one dimension. Is called elastic collision in one dimension. हाँ जी बेटे देखो इधर, लिसन, बड़े ध्यान से देखो आर्टिकल को। लेट here is body number 1, it is moving with initial velocity u1, the mass of body 1 is m1, and in front of body 1 another body of mass m2 moving with initial velocity u2, they are moving in the same direction. बेटे आप देखना, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर u1 जो होगा वो बड़ा होगा और u2 की वैल्यू छोटी होगी, तभी ये जाके क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी है, u1 इज ग्रेटर देन u2। आफ्टर सम टाइम बेटे दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दिस इज द पॉइंट और दिस इज द टाइम, this very short time when they collide with each other, and after collision what happen, they move along the same direction. Body mass m1, its velocity changes and becomes v1, and the mass of velocity of body of mass 2 becomes v2, okay, such that v2 is greater than v1, such that v2 is greater than v1. So therefore bete here before collision u1 is greater than u2, so therefore their difference u1 minus u2 is called velocity of approach,
u1 minus u2 is called velocity of approach, because जितना ये ज्यादा होगा उतना जल्दी जल्दी अप्रोच कर रहे होंगे। एंड v2 minus v1, v2 अगर ज्यादा होगा और v1 कम होगा तो उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा होती जाएगी। सो v2 minus v1 को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ, बेटा जी बोल दिया करो बीच में, सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी, अच्छा समझ गए ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? यस सर। जितना ज्यादा u1 बड़ा होगा उतनी जल्दी ये अप्रोच करेंगे, और जितना ज्यादा v2 बड़ा होगा उतनी ज्यादा ये सेपरेट होंगे। ओके ओके, हाँ तो मैं बेटे इसको थोड़ा सा नीचे वाली इसको कर रहा हूँ रफ। ओके, अब देखो, नाउ बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिकॉज हमने पढ़ा भाई इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बोलो साहस, मोमेंटम इज कंजर्व्ड एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, so therefore as we know momentum is conserved, so momentum of the system before collision is equal to momentum of the system after collision. Okay, so therefore according to law of conservation of momentum, yes बेटा जी आपने ध्यान रखना इस आर्टिकल में u और v में डिफरेंस रखना, v को यहां से गोल कर देना। ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत आएगी आगे। सो इज इक्वल टू व्हाट, m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ओके, m2 v2, और बेटे इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, m1 u1 माइनस, अब यहां से भी m1 की टर्म इधर ले आऊंगा, माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, v2 की टर्म यही है, और यहां से u2 की टर्म ले जाओगे इधर, is equal to m2 सॉरी माइनस m2 u2। सो बेटे यहां से मैं m1 कॉमन ले रहा हूं, इट इज इक्वल टू u1 माइनस v1, और यहां से राइट हैंड साइड में m2 कॉमन ले रहा हूं, सो इट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ध्यान रखना बेटे v1 और v और u का है ना। ओके, यस सर। this is equation number 1. As we know kinetic energy is also conserved, so therefore sum of the kinetic energy of the bodies before collision is equal to sum of the kinetic energy of the bodies after collision। ये आ गया बेटा हमारे पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब सब में 1/2 1/2 का तो 1/2 को मैं कैंसिल कर रहा हूं। ओके, सिमिलरली बेटे m1 की टर्म्स में यहां ले आऊंगा, ये आ गया मेरे पास m1 और u1 पॉजिटिव आएगा, और वहां से मैं v1 लेके आऊंगा राइट हैंड से, तो माइनस क्या आएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा m2 एंड कॉमन आएगा व्हाट, m2 is into v2 square minus left and right से जो चला गया, that is equal to u2 square। okay, this is equation number 2। बेटा जी समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। now dividing 2 by 1, dividing 2 by 1 we get, what you will get, अब देखो बेटा यहीं पे देखना, बोर्ड पे देखो आप, यस लिसन, m1 से जब m1 होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, और राइट हैंड साइड में m2 से m2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो आपके पास बच जाएगा क्या, बोलो शाबाश, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2। आपके पास क्या बच जाएगा बेटे, बोलो शाबाश, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस, बोलो v1। हाँ तो u1 वाली टर्म u1 माइनस v1 से चलो लिख ही लो यार, इट इज इक्वल टू u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1
ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, u1 माइनस v1, तो u1 से v1 वाली टर्म क्या हो गई, कैंसल, और राइट हैंड साइड में भी ऐसे आ जाएगा बेटे, आपके पास क्या आएगा सॉस, आपके पास आएगा v2 माइन प्लस u2, ओके ओके, yes sir, Yes, sir. Yes, sir. so therefore from here you can say बेटे बड़े ढंग से याद रखना, देखो इधर you can say from here the value of, yes, v1 कितना आ गया, v1 is equal to v2 plus u2 minus u1, let this equation number 3, और इसी में से आएगा हमारे पास क्या बेटा, बोलो शाबाश, v2 is equal to u1 plus v1 minus u2, let this equation number 4, बेटा जी डन, yes sir, चले आगे, Yes, sir. हाँ, सो बेटे नाउ लिसन, अगर देखो तो, अगर हम यहाँ से v1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें v2 की वैल्यू मिलेगी, और अगर हम v2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें v1 की वैल्यू मिलेगी, ओके ओके, सो राइट डाउन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2, putting the value of v2 in v1 in equation number 1, in equation number 1 we get yes बेटे बोलो शाबाश, क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ गई, नहीं ये नहीं, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसको लिख लो बेटे, इक्वेशन नंबर 1 है जो फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो है ना, हाँ इसको लिखो m1 u1, इसको लिख लो 1a, ओके, जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम 4 इन इक्वेशन नंबर, बोलो बेटा जी 1a, in equation number 1a we will get, yes, put the value, so you will get m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 into, put the value of v2, it is equal to what, u1 plus v1 minus u2, okay, or it is equal to m1 v1 plus m2 u1 plus m2 v1 minus m2 u2, ओके बेटा जी, यस सर, अब बड़े ध्यान से देखना इसमें ना, यहाँ पे देखो इसमें u1 है, यहाँ पे u2 है, v1 u1 v1 u2, तो मतलब इस इक्वेशन में अब v2 की वैल्यू नहीं बची है ना, yes sir, तो v2 आएगा नहीं, अगर हम v2 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1a में रखेंगे तो मतलब इक्वेशन नंबर 1 में v2 की कोई टर्म ही नहीं आएगी, तो इसको उसमें से कौन सी निकलेगी फिर हमारे पास वैल्यू v1 की, ओके, देयरफॉर आफ्टर सॉल्विंग, ये बेटे आपने इसको बड़े ध्यान से याद रखना, देयरफॉर v1 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व कर लेंगे रीअरेंज लेफ्ट राइट, ओके, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m1 माइनस m2 into u1 plus 2 m2 u2 divided by m1 plus m2, इसको बेटे सॉल्व कर लेना, अपने एक बार ट्राई करना, ठीक है, अदरवाइज न्यूमेरिकल जो था आपके कंपटीशन में भी आता है बेटे, ठीक है, तो जाहिर है v1 की वैल्यू आपने क्रैम करना इसको, ओके, एक बार तो पहले इसको सॉल्व करना है, इधर से उधर करना हो जाएगा, ठीक है, अगले 2 स्टेप में हो जाएगा, सो v1 की वैल्यू आएगा बेटे m1 माइनस m2 u1
प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा जी एनी डाउट? No, sir. No, sir. नाउ बेटे सिमिलरली अब आपने करना नहीं कुछ नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट ओके द वैल्यू ऑफ v2, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम 3 इन 1a। ओके ओके, लेकिन हमने करना नहीं है ना, आपने वो उसमें करना, एग्जाम में करना। आपने सिंपल क्या करना बोलो शाबाश, सिंपल लिखना आपने सिमिलरली v2 इज इक्वल टू जितने भी 1 है, जो जो इस इक्वेशन में v1 की इक्वेशन में 1 है उसको 2 कर दो, 2 को 1 कर दो। ओके क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, क्या आएगा m2 माइनस m1, m1 की जगह m2 हो गया, v1 था इसकी जगह v2 हो गया। ओके एंड m2 की जगह क्या होगा माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, M1 plus M2. m1 प्लस m2, क्योंकि m2 लिखे तो आगे m1 आ जाएगा, सेम ही। ओके ओके बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो बेटा अब मैं इसको ना थोड़ा सा राइट में लिख रहा हूं क्योंकि हमें बाद में चाहिए। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया यस, क्या नाम, रोल नंबर 29 बोलो बेटे, v1 की वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय व्हाट, m1 plus m2। and what is the value of v2, m2 minus m1 u2 plus 2 m1 u1 upon m1 ओके ओके। Yes, sir. अब बेटे अब आएगा स्पेशल केसेस, है ना, क्या आएगा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का मतलब क्या होगा, स्पेशल केस क्या हो सकता है, फिगर से देखो, स्पेशल केस ये हो सकता है भाई एक बॉल बड़ी है दूसरी छोटी है, मतलब इनकी मास डिफरेंट हो सकती है। ये भी हो सकता है भाई m1 इज ग्रेटर देन m2, ये भी हो सकता है भाई m2 इज ग्रेटर देन m1, ये भी हो सकता है भाई u2 इज स्टेशनरी। ओके एंड v2। ओके सो देयरफॉर स्पेशल केसेस में बेटे, मैम ने बेटा गूगल फॉर्म आई थिंक शेयर किया होगा बेटा जी, कर दिया सर। हो गया। ओके सो बेटे राइट डाउन नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m से, अगर इन दोनों की मासी सेम होगी तो बेटे देखो इधर रिलेशन, इक्वेशन नंबर इधर देखो v1 में ना, अगर m1 होगा तो इक्वेशन नंबर देखो इधर, इस इक्वेशन का नंबर दे दो, जो v1 की इक्वेशन थी इसका इक्वेशन नंबर दे दो 5, और जो v2 की इसका नंबर दे दो 6। देन फ्रॉम 5 वी हैव v1 इज इक्वल टू, देखना बेटे इधर m1 और m माइनस m क्या हो जाएगा 0। सो देयरफॉर हमारे पास बच जाएगा क्या टू m इंटू u2 डिवाइडेड बाई 2m, है ना, वही बचेगा। Yes, sir. 2 से 2 और m से m क्या हो जाएगा, Cancel. so therefore v1 is equal to u2, v1 is equal to u2। okay v1 is equal to u2, or if both the colliding bodies are of same masses, then the initial velocity of body number 2 will become equal to the final velocity of body number 1, है ना। सिमिलरली बेटे, सिमिलरली v2 भी कितना हो जाएगा बोलो शाबाश, U1. है जी, U1. वेरी गुड u1। ओके और the final velocity of body number 2 will become equal to the initial velocity of body number 1। ओके यस सर। अब बेटे अब देखना, अब सेकंड स्पेशल केस में क्या बेटे, बड़ा ध्यान से देखो, सेकंड जो स्पेशल केस है उसमें मान लिया हमने क्या, फर्स्ट केस दैट ut is equal to 0, ut नहीं, u2 is equal to 0 और the colliding body is what, at rest, body number 2 is at rest। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, देखना यहां से
U2 की वैल्यू 0 है, तो 2m2 U2 वाली टर्म 0 हो गई है ना। यस सर। तो आपके पास आगे M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइडेड बाई व्हाट, M1 प्लस M2। और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी? अब M1 M2 माइनस M में U2 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। ओके, Yes, sir. ये आएगा यस सर। 2m1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, Yes, sir. अब ये जो ना ये सुनो, अगर U2 की वैल्यू 0 है तो हमने इस V1 और V2 से वैल्यू निकाली V1 V2 की अगेन। ओके, लेट दिस इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इक्वेशन नंबर 8। अब सब स्पेशल केसेस हैं। सब स्पेशल केस में क्या है? 2.1 क्या है पुरुषार्थ? इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। ओके, तो इसमें से देखना, तो V1 कितना आएगा बेटा? बोलो। 0. M1 M माइनस M इंटू U1, तो M माइनस M 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया ना। Yes, यस sir. सर। और V2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? V2 इज इक्वल टू V1 सॉरी U1, क्योंकि 2m U1 अपॉन 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। ओके, Yes, sir. यस बेटा। सेकंड केस 2.1, if M1 is very large than M2, M1 is very large than M2। देखो लिसन, डायग्राम में आ जाओ। ये जो M2 है मान लो फुटबॉल है, और जो M1 है वो एलिफेंट है ना। तो एलिफेंट का जो मास होगा एज कंपेयर टू फुटबॉल क्या होगा? वेरी लार्ज। वेरी लार्ज। सो बेटे V1 की वैल्यू देखो तो समझ लो, V1 की वैल्यू कितनी होगी? M1 इज वेरी लार्ज माइनस M2। वेरी लार्ज, एक पहाड़ के ऊपर से अगर आप 100 ग्राम का पत्थर ले आए उठा के, तो पहाड़ का मास कम हो जाएगा। No, sir. सो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, यस सर। ओके बेटा जी। Yes, sir. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? 2m1 U1। अब M1 प्लस सॉरी नीचे लिसन बेटा, इधर देखो। अब M1 में पहाड़ के ऊपर अगर आप पंजाब से एक पत्थर लेके जाएं और नैना देवी के पहाड़ के ऊपर रख दें या वैष्णो देवी के पहाड़ के ऊपर, तो उसका वजन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। No, sir. तो यहां से हमने M2, तो M1 से M1 कैंसिल हो गया, तो बेटे यहां से हो गया इट इंप्लाइज दैट V1 इज इक्वल टू व्हाट, U1। ओके, एंड V2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? अब M1 प्लस M2 दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 रह जाएगा, M1 से M1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू 2U1। ओके बेटा, देखो इधर लिसन, बड़े ध्यान से देखना। अगर एलिफेंट जो है वो U1 वेलोसिटी से चला हुआ है और वो फुटबॉल से टकरा जाता है, तो एलिफेंट की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 1 इज इक्वल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ओके, यस सर। और एलिफेंट अगर 20 की स्पीड से चला हुआ है U1, तो फुटबॉल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसका डबल हो जाएगी ना। Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी विल बी इक्वल टू डबल ऑफ द final velocity of the target body is equal to double of the velocity of colliding body। okay, Yes, sir. हाँ जी। एंड थर्ड बेटे इसका जो एग्जांपल है, सॉरी सब केस, थर्ड सब केस में क्या आएगा? बोलो शाबाश, अपने आप ही बोल दो। When M1 is very large than M2. वो तो हो गया मामा। M2 is very large than M1। M1 is very small than M2। ओके, सो देयरफॉर बेटे V1 कितना आएगा बोलो यहां से? अब M2 वेरी लार्ज है, सो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी है ना।
Yes, Yes, sir. sir. ये रह जाएगा आपके पास m minus m2 into u1 divided by m2. m2 से m2 क्या हो गया? Cancel. Cancel. So therefore, final velocity of what? Targeting body, sorry, colliding body is equal to minus its initial velocity. Okay? आपने फुटबॉल देखना और उसको दीवार के ऊपर मारना है ना, तो फुटबॉल जिस वेलोसिटी से आप मारेंगे उसी वेलोसिटी से वो आपकी तरफ आ जाता है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? Negative Opposite. वापस आ रहा है. Opposite. ये बता रहा है भाई जो कोलाइडिंग बॉडी है दैट इट्स स्पीड रिमेन सेम बट इट्स डायरेक्शन रिवर्स. ओके. Yes, sir. और बेटे v2 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो शाबाश. m1 तो है ही 0 है ना. Zero आ जाएगी. सो देयरफॉर v2 इक्वल टू 0. दीवार नहीं हिलेगी है ना. Yes, sir. हाँ, सो दीवार नहीं हिलेगी. ओके बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आज आपने रिवाइज करना. ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.